Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video, I have come up with few learnings from NABARD 2023 cutoff. So students, it is very important, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पास्ट ट्रेंड क्या है कट ऑफ का फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, बिकॉज उससे आप एनालाइज कर पाओगे कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है या नहीं, या किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है और जो ओवरऑल कट ऑफ है वो कितनी रहती है यूजुअली, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन, अकॉर्डिंगली यू कैन गिव अ डायरेक्शन टू योर प्रिपरेशन फॉर ईच सब्जेक्ट, right? So in this video I am going to tell you few lessons or few learnings that you can learn from cutoff of NABARD 2023 examination. We will see what is the cutoff for the 2023 एग्जाम, देन हम पास्ट 3 इयर्स की कट ऑफ कंपेयर करके कुछ लर्निंग्स, कुछ पैटर्न देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रिडिक्ट कि 2024 में व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फॉर द सेम, राइट? सो दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग I wanted to show you something. So it is very informative blog for you. So EduTap has recently launched this blog. You can just type EduTap blog, you will reach this interface. Now in this blog, if you want any if you have any doubt regarding NABARD examination, you want any information regarding the same, you can just go to the category, select your exam, that is NABARD grade A, right? Here you will see every information is provided. Okay, what kind of information? So like information related to exam, information related to job profile, if you wanted to know what is the job profile of a NABARD grade A officer, then strategy, if you wanted to know strategy to crack this exam, courses and success stories. Okay, let me show you the success stories. So students, see, to motivate yourself, you can just visit this page and you can see success stories of NABARD grade A aspirants. You can watch them and motivate yourself, as well as see what strategy they have followed. Accordingly you can follow same for yourself, right? So let's come back to our video. So today's video was on learning from NABARD 2023 cutoff. So first let us see कि cutoff रही क्या थी 2023 एग्जाम के लिए. So if I talk about non-merit section, so सबसे पहले for reasoning cutoff of 2023 phase 1 वो कितनी है 3. Then we have English की cutoff 10.25. For computer knowledge it was 2.75. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए अगेन 3, डिसीजन मेकिंग के लिए 1.5. सो दिस इज द योर नॉन मेरिट सेक्शन. यहाँ की कट ऑफ हमने देख ली. नाउ मूविंग ऑन टू द मेरिट सेक्शन, इन जीए इट इज 2.75, ESI 3.5, ARD 4.25 and overall if I talk about it is 46. Now let me make you clear here that this is for journalist. ओके, जर्नलिस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नलिस्ट कैटेगरी हियर. तो जर्नलिस्ट के लिए ओवरऑल कट ऑफ आपकी 46 रही है फॉर फेज 1 ऑफ 2023 एग्जाम. ठीक है. नाउ आफ्टर सीइंग ऑल द कट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट एंड फॉर द फेज 1, लेट्स मूव टू द फेज 2. नाउ फेज 2 वी हैव 2 पेपर, राइट? पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 2 किसका होता है? ESI प्लस ARD, अगेन जर्नलिस्ट पोस्ट, राइट? Okay, now for paper 1 the cutoff was 53.25. paper 1 किसका होता है? That is of descriptive English. descriptive English total आपका 100 marks का होता है and for 2023 the cutoff was 53.25. You can see more than 50% marks you need. At least you should score here 55 to 60. ठीक है. Next coming to the पेपर 2. इन पेपर 2 आपका ESI ARD होता है बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप. इन ऑब्जेक्टिव द कट ऑफ वाज 22.50, इन डिस्क्रिप्टिव द कट ऑफ वाज 31. एंड इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल कट ऑफ ऑफ फेज 2 इट वाज 128.5 फॉर जर्नलिस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, राइट? चलो, दिस वाज phase 2 cutoffs. Now let's see final cutoff. So final cutoff for being selected as a NABARD grade A officer from the journalist post from unreserved category was 172.75. Now the very first learning that you have to take away from this cutoff is from this particular slide. See, you can see the overall cutoff was 128.50. एंड द फाइनल कट ऑफ आफ्टर एडिंग योर इंटरव्यू मार्क्स. ठीक है, ये कट ऑफ जो है ये आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ने के बाद की कट ऑफ है. इट इज अराउंड 172.75. तो इफ वी सी द डिफरेंस इट इज अराउंड 44.25, राइट? तो अप्रोक्सीमेटली 45 मार्क्स चाहिए अगर आपने सिर्फ इतने मार्क्स स्कोर किए फ्रॉम फेज 2. तो स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या सीखने को मिलता है? सो सी, if we score the minimum marks that is required for
फेज 2, क्लियरिंग फेज 2 ऑफ एग्जाम, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नंबर चाहिए। इंटरव्यू में आपको 45 नंबर चाहिए, और इंटरव्यू कितने का होता है? इट इज ओनली ऑफ 50 मार्क्स। तो इंटरव्यू में 45 मार्क्स लाना मीन्स आपको बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करना होगा। यू हैव टू डू एक्सीलेंट, गिव योर इंटरव्यू एक्सीलेंट। एंड अगेन इंटरव्यू इज अनप्रेडिक्टेबल, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता पैनल कैसा है, आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, कैसे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, राइट। तो पहली लर्निंग तो यही हुई। पहली लर्निंग तो ये है कि फोकस ऑन फेज 2, फोकस मोर ऑन स्कोर ऑफ फेज 2, आई वुड से। बिकॉज क्यों? देखो, जितना आपका फेज 2 का स्कोर ज्यादा होगा उतना कम आपको इंटरव्यू में मार्क्स, कम भी आए तो चलेगा, राइट। यू कैन कॉम्पनसेट द मार्क्स फ्रॉम फेज 2। तो हियर अब ये नहीं देखना है कि 200 में से हमें सिर्फ 128 नंबर लाने हैं, नहीं, आपको फेज 2 में मैक्सिमम स्कोर करना है, सो दैट आपका जो इंटरव्यू में जैसा भी परफॉर्मेंस हो, जैसे भी नंबर हो, वो क्यूमुलेट होके आपका जो एग्रीगेट है दैट कैन लीड टू यू टू द फाइनल लिस्ट, राइट। तो पहली लर्निंग क्या हो गई कि हमें फेज 2 के मार्क्स को इंप्रूव करना है, फेज 2 में अपना 100% देना है, ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम इन फेज 2, क्योंकि अगेन इंटरव्यू इज अनप्रेडिक्टेबल, वहां पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपने एग्जाम्स, सॉरी अपने मार्क्स। तो अगेन आपने पहली लर्निंग हो गई कि फोकस मोर ऑन द स्कोर ऑफ फेज 2, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, वील डू द पास्ट एनालिसिस। तो ये प्रीवियस 3 इयर्स की कट ऑफ है, ठीक है, 21, 22 एंड 23 की कट ऑफ है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ से हमें क्या लर्निंग्स मिल रही है। सो फर्स्ट इफ आई टॉक अबाउट क्वांट्स, तो क्वांट्स के लिए यू कैन सी कट ऑफ इज ऑलमोस्ट सेम 533। तो यहाँ पे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि 2024 में भी जो कट ऑफ होगी दैट विल रिमेन अराउंड 5 to 3 और 6 मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी में ऑलमोस्ट सेम, तो अगेन यहाँ पे भी यू जस्ट नीड 3 to 5 मार्क्स फॉर 2024, अगेन बिकॉज कट ऑफ सेम रही है, मीन्स लेवल ऑफ एग्जाम सेम रह रहा है सबके लिए। Next we have English. Now students, second learning is from here. Second learning is from the English. So English में you can see the cutoff, though it has decreased, though the cutoff has lowered down a bit as compared to the past 2 years, but still it is at the higher end as compared to the other non-merit section. आप देखो, और non-merit section में इंग्लिश की जो कट ऑफ है फिर भी सबसे ज्यादा है। That means आपने इंग्लिश में फोकस करना है। You can expect 2024 में इंग्लिश की कट ऑफ ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि अगेन फ्रॉम द पास्ट ईयर वी कैन सी द सेम पैटर्न, राइट। तो आपने क्या करना है, इंग्लिश पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश में फोकस करना है एंड ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट, ट्राई टू डू एटलीस्ट आई वुड से 12 to 15 क्वेश्चन करेक्ट फॉर 2024, ठीक है। इतना आपने स्कोर करना है, इतना आपने टारगेट करना है कि मुझे 15 क्वेश्चन इंग्लिश में बिल्कुल सही सही करके आने हैं, सो दैट आई कैन बी इन द सेफ जोन। बिकॉज इंग्लिश में देखो वी हैव 30 क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू मैक्सिमम इन इंग्लिश आउट ऑफ ऑल नॉन मेरिट सेक्शन, ठीक है। सेकेंड लर्निंग इज फोकस ऑन इंग्लिश, आपने इंग्लिश की कट ऑफ को ध्यान रखना है और इंग्लिश को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंप्यूटर नॉलेज। सो कंप्यूटर नॉलेज में वी कैन नॉट सी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। Then we have decision making, again there is no significant difference, 1.25, 1.5, 1.5। तो आपने सिर्फ यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन सही करने हैं। कंप्यूटर में यू कैन गो फॉर 5 to 6 क्वेश्चन, बिकॉज 22 की जो कट ऑफ है वो 5.5 है, तो आपने 6 क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ पे राइट और करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब ये हो गई नॉन मेरिट सेक्शन की बात। लेट्स कम टू द मेरिट सेक्शन। नाउ मेरिट सेक्शन में इफ वी सी फॉर ARD कट ऑफ हैज decreased. For past में it was around 6.5, 6.75, but for this year significant decrease देखा गया है कि 4.25 है मिनिमम कट ऑफ ऑफ ARD, ठीक है। If I talk about ESI, तो ESI में स्टूडेंट्स देखो the कट ऑफ is almost same, 3 से 4 की रेंज में it is there, ठीक है। तो you can expect कि again for 2024 आप 2024 में ESI की मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने के लिए 6 से 7 क्वेश्चन you will do correct, तो that will do, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज GA। तो GA में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मिनिमम कट ऑफ में, सो अगेन हियर यू कैन एक्सपेक्ट कि आपने 3 से 4 क्वेश्चन सही सही करने हैं फॉर क्लियरिंग द मिनिमम कट ऑफ ऑफ GA, ठीक है। नाउ सेकेंड लर्निंग इज फ्रॉम हियर, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड लर्निंग आई वुड से इज फ्रॉम दिस हियर कि दो ARD की कट ऑफ देखो, ARD की कट ऑफ कम हुई है, बट इफ वी सी ओवरऑल कट ऑफ, यू कैन सी ओवरऑल कट ऑफ
दैट हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, यहाँ पे ARD की कट ऑफ वाज 6.75, ओवरऑल कट ऑफ वाज 41.75। ठीक है, नाउ यहाँ पे दो ARD की कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ हैज डिक्रीज बट स्टिल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, सो सेकेंड लर्निंग फ्रॉम हियर इज कि आपने ओवरऑल कट ऑफ पे ध्यान देना है, अपना जो मेरिट सेक्शन है वहां की ओवरऑल कट ऑफ पे ध्यान देना है। अब ये नहीं कि ARD में कट ऑफ कम हुई है तो इसका मतलब है कि ARD बहुत टफ आया है या फिर बच्चों ने ARD पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ये अपने से कोई कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है और ARD को कम इंपॉर्टेंस दो, अब इसकी मिनिमम कट ऑफ कम गई है, नहीं, ये नहीं करना है। आपने ARD पे ध्यान देना है क्योंकि अगर आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। ठीक है, आपने ESI GA भी अच्छे से करना है, देन आपने ARD पे भी अच्छे से ध्यान देना है। व्हाट इफ फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज अराउंड 7, अगर ARD की कट ऑफ अगले साल के लिए 2024 के लिए 7 चली गई तो फिर यहाँ पे आपके 4 नंबर से काम नहीं चलेगा, आपने ARD को फोकस करना है। ठीक है, सो यहाँ पे द थर्ड लर्निंग आई वुड से इज ARD। ठीक है, ARD कि आपने ARD में ध्यान देना है। इट्स नॉट लाइक कि आप कट ऑफ कम हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी कम होगी। तो स्पेशली फॉर दोज हु आर नॉट फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, वो यहाँ पे खुश मत हो जाना कि ARD की कट ऑफ कम हुई है तो अगले साल भी कम होगी, नहीं। ठीक है, इट कैन इंक्रीज ऑल्सो। ये पार्ट है आपका आपका मेरिट सेक्शन का, तो इसको आपने उस तरीके से ही लेना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ इंक्रीज हुई है। अगेन यू कैन एक्सपेक्ट ओवरऑल कट ऑफ भी 2024 के लिए इंक्रीज हो सकती है। देखो 2021 में इट वाज अराउंड 53.5, अगेन 55 तक भी जा सकती है। तो यू हैव टू एटलीस्ट स्कोर अराउंड 55 to 58 क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द मेरिट सेक्शन। क्लियर, चलो, ये हो गई आपका phase 1 का एनालिसिस। देन इफ आई टॉक अबाउट phase 2, ठीक है, नाउ देयर आर इंपॉर्टेंट लर्निंग्स इन phase 2 पैटर्न ऑल्सो। फर्स्ट इज दैट इफ वी सी द cutoff of English, descriptive English, so it is increasing. I can say it is increasing because here no significant difference is there. It is 50.25, 49, around at least 50 we can expect. And again यहाँ पे English की जो कट ऑफ है वो बढ़ी है। फेज 1 में भी हमने देखा था कि इंग्लिश की कट ऑफ सबसे ज्यादा थी, यहाँ पे अगेन इंग्लिश की कट ऑफ बढ़ी है, तो आपने इंग्लिश में फोकस करना है। ठीक है, फोकस ऑन, दिस इज द फोर्थ लर्निंग आई वुड से, फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी फोकस करना है बिकॉज यू कैन सी कट ऑफ इज इंक्रीजिंग, इट कैन इंक्रीज, इट कैन गो हाई अप टू एज 55 और 56 फॉर द कमिंग ईयर। सो यू हैव टू फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, प्रेसी लिखना है, लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, अपनी ग्रामेटिकल एरर्स, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें ध्यान देना है, अपनी टाइपिंग स्पीड पे ध्यान देना है बिकॉज अगेन इंग्लिश is the one subject that is having 100 marks. ठीक है, एक अकेला सब्जेक्ट है जिसके पास 100 नंबर है। यहाँ पे आपके फिर भी मार्क्स डिवाइड हो जाते हैं ARD ESI में, बट इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट, इट होल्ड्स 100 मार्क्स। तो आपने इंग्लिश में एटलीस्ट 60 प्लस तो आपने स्कोर करना है। ठीक है, नाउ पेपर 2 की अगर बात करें, पेपर 2 में भी ऑब्जेक्टिव, तो अगेन देखो ऑब्जेक्टिव के लिए ना द कट ऑफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सेम फॉर द सब्जेक्टिव, दैट इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट, कट ऑफ इज इंक्रीजिंग। तो दिस इज आई वुड से द फिफ्थ लर्निंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन पेपर 2 बिकॉज पेपर 2 के लिए वी हैव सीन द जनरल ट्रेंड, द कट ऑफ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो फोकस ऑन पेपर 2। ठीक है, बोथ ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, इट्स नॉट लाइक दैट कि डिस्क्रिप्टिव की ही बढ़ रही है, ऑब्जेक्टिव की बढ़ रही है, दोनों की कट ऑफ बढ़ रही है। इसका मतलब है कि आपको दोनों ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ऑफ पेपर 2 यू हैव टू फोकस। ठीक है, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एंड अगेन यहाँ पे यू कैन सी दो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ओवरऑल कट ऑफ, बट स्टिल द मिनिमम कट ऑफ आप अगर देखोगे दैट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो अगेन इन द 2024, ठीक है, आपकी अगर ओवरऑल कट ऑफ रहती है अराउंड 130 to 132, ठीक है, और आपने स्कोर कर लिया, बट आपको अगेन यहाँ पे जो इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ है वो बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज इट कैन इंक्रीज अगेन एज पर द प्रीवियस ट्रेंड। क्लियर, so these were few important learnings that I feel you have to take away from the cutoff of 2023 exam. ठीक है स्टूडेंट्स, so it is very important to analyze the cutoff. ठीक है, हमने देख लिया है। अब जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं आपने उस पॉइंट्स को थोड़ा सा एनालाइज करना है, देखना है, सिट विद दोज पॉइंट एंड ट्राई टू एनालाइज कि उन पॉइंट्स में आप कितना काम कर रहे हो। अगर अभी तक नहीं किया है देन यू बेटर बी स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन दोज पॉइंट्स। ठीक है, पेपर 2 इंग्लिश का फोकस करना है,
देन आपने पेपर 1 इंग्लिश का जो है उस पर फोकस करना है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव बोथ वहां पे फोकस करना है। देखो मेंस ओवरऑल ना इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है क्योंकि मेंस की जो ओवरऑल कट ऑफ है वो बढ़ रही है, तो मेंस में आपने ज्यादा फोकस करना है। प्री की अगर हम बात करें तो प्री में इंग्लिश में फोकस करना है फ्रॉम नॉन मेरिट सेक्शन क्योंकि वहां पे कट ऑफ जनरली ज्यादा ही है। देन टॉकिंग अबाउट मेरिट सेक्शन, वहां पे ESI GA में ऑलमोस्ट सेम है, बट ARD में अगेन इस साल कम हुई है, अगले साल बढ़ सकती है क्योंकि आपको ओवरऑल कट ऑफ भी देखनी है। ओवरऑल कट ऑफ क्या हुई थी, बड़ी थी, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, राइट, एंड आई होप you have understood whatever I was trying to tell you here. Rest, if you're new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and you want to download the PDF of this particular session, you can join us on our Telegram channel. Okay, so that's all students. I hope you have enjoyed. Thank you so much.